the Republic Media Network headquarters. It's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. Welcome back. Now time for the nation's sharpest opinion. Ladies and gentlemen, on Saturday, big victory for Yogi in the by-elections in Uttar Pradesh. 7 out of 9 go to the BJP, NDA, Samajwadi Party wiped out. And within 24 hours of that result, in fact, within less than 24 hours of that result, see what happens in Sambhal, Uttar Pradesh. Pictures on your screen, ladies and gentlemen, of rioting, violence. Who fanned the Sambhal fire? Ladies and gentlemen, how is it that the BJP wins a big election in Uttar Pradesh on Saturday? Yogi wins a huge election. And on Sunday, there is violence in Uttar Pradesh, communal violence. If you see the chronology of events, as they say, chronology samjhiye, you will see the big picture that this has nothing to do with religion and everything to do with politics. You see, a Sambhal court gives an order for a survey of the Jama Masjid site in Sambhal after top Hindu lawyer Vishnu Shankar Jain's petition. The petitioners say that the site on which the Jama Masjid in Sambhal stands was once an ancient Hindu temple dedicated to Lord Kalki. The petition argues that the present Shahi Masjid stands on the site of the historic Harihar Mandir, which Babur demolished in 1529. The court of the civil judge then orders a survey and appoints an advocates commission to oversee the process. On November 19th, the commission conducts the first round of the survey, which is carried out peacefully. There is no violence in Sambhal after the ASI survey on Wednesday, Thursday and even on Friday. Friday, prayers take place very peacefully inside the same Jama Masjid. On Saturday, that is November 23rd, chronology samjhiye, the results of the UP by polls come in and the Samajwadi Party wins only 2 seats. BJP gains 3 to 4 seats. Tremendous comeback. Yogi is strong. Immediately after that, the Samajwadi Party becomes nervous. And on Sunday morning, ladies and gentlemen, 20 hours after the results start trickling in Uttar Pradesh, 18 hours after it is clear that Yogi has won a big victory, when the court-appointed committee comes for the second round of survey at the Jama Masjid, that same place turns into a scene of tremendous rioting. And ladies and gentlemen, I don't need to tell you what is going on. In fact, Akhilesh himself connects the Sambhal violence with the by-polls. He says that the Yogi government indulged in malpractice in the polls, looted votes and engineered trouble in Sambhal to hide it. Is Akhilesh frustrated after an embarrassing defeat in which the Samajwadi Party was routed? Is the violence the result of the Samajwadi Party losing another 3 assembly seats to the BJP? Why did Ram Gopal Yadav of the Samajwadi Party say, and I say in Hindi, अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसला लेने लगे तो सारे देश में आग लगा देंगे? कौन होते हैं आप आग लगाने के लिए? समाजवादी पार्टी के नेता आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? Why is he saying we will set fire to the country? If the courts issue judgments that you don't like, you'll set fire to the country. What kind of a statement is that? And where is the secularity on it? Why the wire and the scroll? And all the rubbish journalists, why are they quiet about what has been said there? Rubbish journalists, ladies and gentlemen. Now, why is the Samajwadi Party issuing a threat to the courts? Viewers, Samajwadi Party leaders have been booked for inciting violence. The situation is very polarized. But my question tonight is simply this: who is polarizing? Does the BJP polarize because it sweeps the election? Because you say batenge to katenge, ek rahenge to safe rahenge. If a call is being made for Hindu unity, is this the way you answer? Because you lose the elections, this is the way you answer? You threaten to burn the country? Well, we will not allow it, ladies and gentlemen. Let all political parties
who only want to do minority appeasement come together and claim they will burn the country. The nationalists in this country will stand against them. And let me tell you, the nationalists will win. The nationalists will win. जो राष्ट्रवादी है वही जीतेंगे. Let's debate. देख सकते हैं पूरी सड़क पे जो पत्थर हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय नई जामा मस्जिद में सर्वे की टीम पहुँची थी। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर इस पूरे इलाके में और इसके साथ जो दूसरा इलाका लगता है वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया था। और तस्वीर यही दर्शाती है कि सुबह के समय जो तमाम जो यहाँ पे उपद्रवी मौजूद थे वो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये पत्थर कई पुलिसकर्मियों को लगे हैं और जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। A survey ordered at a mosque, now the subject for national debate. On the 19th of November, a court ordered the survey of the 16th century Jama Masjid, a Mughal era mosque in Moradabad, Sambhal. On the 24th of November, violent clashes broke out. There is evidence of this riot being pre-planned. भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के जो पत्थरबाजों की मंशा थी कंप्लीट नहीं होने दिया। And a Samajwadi Party MLA's son is being investigated. अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे सर मंड रहे हैं। जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। The party that won the most number of seats in Uttar Pradesh Lok Sabha elections is openly inciting masses. एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा, कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। संभल के सांसद वहाँ थे भी नहीं और कई दिनों से नहीं थे, तो वो गलत है। और हमारी तो मांग है कि जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया, जिन्होंने गोलियाँ चलवाई, गोलियां चलवाने वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। But Akhilesh Yadav, attending the winter session in Parliament, is denying any link. हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया। The BJP says these riots were orchestrated. जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया, और दंगा ही नहीं कराया बल्कि सरकारी चीजों पर, संविधान पर उनको भरोसा नहीं है। So who's fanning the Sambhal fires? I have a request today. My request is, हमारे पास समय पूरी है। मैं चाहता हूं कि सबकी बात सुनी जाए
और मैं सबसे, अनिला सिंह से और सबसे ज़्यादा अनुराग भदौरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे की बात सुने और अपने बात ख़त्म करने के बाद कोई कहे तो कष्ट करके दूसरे की बात सुन ले। उसके ऊपर बोलने से क्या होता है अनुराग जी, अनिला जी, वो इट्स बहुत सीरियस सिचुएशन है, सबकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूँ अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया जी, मुझे आप संक्षिप्त में, इफ़ यू कैन इन 2 minutes टेल मी दैट जब पहली राउंड हुई, व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ दिस सर्वे हैपेंड, कोई वायलेंस नहीं हुई। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इतना तक कि फ्राइडे तक ये सर्वे चल रही थी कि ये जो मस्जिद है, जहाँ पे मस्जिद है, शाही मस्जिद है, क्या यहाँ पे मंदिर थी? और कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन है, एडवोकेट्स कमीशन, वो अपना काम कर रही है जैसे कोर्ट ने कहा है। उनको काम करने देना चाहिए, कोर्ट ने कहा है। तो अचानक कैसे, हाउ इज इट सडनली दैट, देखिए संडे सैटरडे को रिजल्ट आ गया और संडे को दंगे हो गए, शनिवार को नतीजे आ गए, योगी जी की स्वीप हो गई, आपका सफाया हो गया ज्यादातर, और 18 घंटे के अंदर दंगे हो गए। अनुराग भदौरिया is opening the debate on the Sambhal violence. Please. देखिए अर्नब जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बहुत सेंसिटिव मामला है तो मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह बताना चाहता हूँ। आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए कैसे उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति हो रही है। सफ़र कौन कर रहा है? गरीब घर के बच्चे। याद होगा आपको कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत हुई थी। कौन था वो चंदन गुप्ता? फिर उसके बाद आप आ जाइए बहराइच में, किसकी मौत हुई? राम गोपाल मिश्रा जी की। उसके बाद अब संभल में फिर 4 बच्चों की मौत हुई। तो ये गरीब घर के बच्चे लगातार, उनकी इस तरह का जब दंगा होता है तो उनकी मौत होती है। तो आप बताइए इससे फ़ायदा किसको होता है? नफरत की राजनीति से फ़ायदा समाजवादी को तो नहीं है। समाजवादी तो नफरत की राजनीति को बढ़ावा नहीं देता है ना। हम नफरत की राजनीति करते हैं, हम तो भाईचारे की बात करते हैं। कौन पार्टी है जिसको इस नफरत की राजनीति से फ़ायदा होता है? तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। अब संभल की बात करते हैं। संभल में जो आपने बोला, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि वहां पे 19 तारीख को सर्वे हुआ। सर्वे के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब अपने घर चले गए। फिर वो 22 को आए, 22 में भी वहाँ लोगों ने नमाज पढ़ी, कोई बात नहीं, सब अपने घर चले गए। 24 तारीख को चूंकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, अब जीतने के बाद मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उनके लोग थे, ये मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा सर्वे वहां हो रहा है, तो क्या पुलिस सिस्टम ने सैनिटाइज किया उस इलाके को? कह रहे हैं बाहर से 10-12 किलोमीटर से लोग आ गए। अचानक वहां जब सर्वे चल रहा है, सर्वे के खत्म होने के पहले अचानक हजारों लोग कैसे आ जाते हैं? ईंट पत्थर इतना ज्यादा वहां कहां से आ जाता है? क्योंकि छतों पर तो पाया नहीं गया। सैनिटाइज आपने किया होगा जरूर, अगर नहीं किया तो आप बताइए कहां से पत्थर आ गए, बंदूक कहां से आ गई? तो इसके मतलब पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो फेल है, पुलिस की जो आंतरिक जो सुरक्षा होती है आईबी डिपार्टमेंट वो फेल हो गया, तो पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया। पुलिस ने अपना कोई व्यवस्था ही नहीं की और इतना बड़ा सर्वे हो रहा है, जाके सर्वे हो रहा है, सर्वे को पुलिस जानती है सेंसिटिव मामला है तो सैनिटाइज करती है ना। कहते हैं वहां लोकल के लोग नहीं थे, बाहर के लोग आ गए। बाहर के लोग अचानक छूमंतर से पैदा हो गए क्या, कि एकदम छूमंतर हुआ, हजारों लोग आ गए ईंट लेके पैदा हो गए? कौन है वो लोग? कहां से आए ये लोग? कैसे उनको आने दे गया? वो नकाबपोश कैसे वहां पहुंच गए? तो ये तो जांच को चिंता का विषय है ना। बहुत दुखद बात है, बहुत दर्दनाक बात है, वो चिंता की बात है। हम तो अपील करेंगे संभल के लोगों से कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि हमारे 4 अपने जिसके घर के बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती है, मां के दिल पे क्या गुजरती होगी जिनके 4 बच्चे चले गए। भाई राजनीति करने वाले तो राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए उनके परिवार से क्या गुजरती होगी। नफरत की राजनीति से तो सिर्फ नुकसान किसका होगा? देश का, समाज का। हम अपने बच्चे अनुराग भदौरिया लगातार। अनुराग भदौरिया कि आप इस नफरत, अनुराग जी थैंक यू, आपको आई अलाउड यू टू मेक योर ओपनिंग रिमार्क्स। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। जिम्मेदारी लेनी चाहिए अनुराग जी, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। मैं तो इतना कह रहा हूं कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी मैं आपकी बात समझ गया, अभी आपको समय दिया, अभी आप रुक जाइए, मैं कह रहा हूं। थैंक यू। अब दूसरे पैनलिस्ट को आने दीजिए एंड डोंट इंटरप्ट व्हेन दे आर स्पीकिंग। थैंक यू। अगर पुलिस ने सैनिटाइज किया होता तो लोग, अनुराग जी प्लीज प्लीज, थैंक यू। मैंने थैंक यू कह दिया ना एक बार, अभी आप रुक जाइए प्लीज। थैंक यू। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा था, इसके मतलब, मेरी बात सुनिए, इसके मतलब पुलिस, अनुराग जी अभी आपको रुकना चाहिए। क्यों नहीं था?
यही मैं जानना चाहता हूँ, लोग कहां से आ गए, कैसे Thank आ you. गए? Don't repeat. Volume आप down. बैरिकेडिंग Now क्यों my नहीं किया question आपने? is, and I आप want to 1-1 speak किलोमीटर over तक this, चुनाव ladies हो रहा and था, तो gentlemen. आपने बैरिकेड माने 1-1 The point किलोमीटर is तक that what has to be बैरिकेडिंग understood करती is थी। आप बिना- that आपने nobody बैरिकेडिंग can की। stop a court-appointed commission from doing its job. It's a commission of advocates appointed by the court. कोई उनका बाधारोधक नहीं हो सकता. Nobody can come in the way. They have to follow the rules. Now, why will the BJP stop the commission from doing its job? The BJP wants to reclaim that place as a mandir. Only those people who do not want people to know whether the Shahi Masjid stands at the site of the historic Harihar Mandir demolished by Mughal ruler Babur in 1529. जो चाहते हैं कि बाबर ने क्या किया 1529 में, जो छुपाना चाहते हैं, जो सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, वही लोग रोकने की कोशिश करेंगे. बीजेपी तो रोक नहीं रही है. तो कौन थे वो लोग जिन्होंने पुलिस को, जिन्होंने कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट्स कमीशन को काम करने से रोका? वही तो मैं और ये हिंसा, व्हाई डिड द वायलेंस हैपन आफ्टर द रिजल्ट? अरे फ्रस्ट्रेटेड कोई है, यस, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप फ्रस्ट्रेशन इस तरह से नहीं निकाल सकते. कौन है फ्रस्ट्रेटेड, कौन है, कौन है जानना चाहता हूं. तो जो जीतते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्या वो हारते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? आप बताइए मुझे. मुझे तो पता है जो हारते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. मैं भी तो वही जानना चाहता हूं. मैं भी चाहता हूं. क्यों नहीं हुआ काम? फ्रस्ट्रेटेड तो आप होंगे क्या कर रहा था? क्योंकि आपका सफाया हो गया, बिकॉज यू वर वाइप्ड आउट. अनिला इज ओपनिंग द डिबेट. अनिला, अरे आप उसको राजनीति से देखने लगे. दिक्कत है कि आप हर चीज को राजनीति से क्यों देखते हो भाई? मैं भाईचारे में पूछ रहा हूँ कि कौन लोग हैं, कैसे आ गए, अचानक कैसे पैदा हो गए, कहां से कहा गया है? सुन लीजिए भाई. Anila Singh of the BJP is opening the remarks from the other side. Anila Singh, please. Very sensitive debate. Run the pictures. Let the people of the country see क्या हुआ है. आप जहां पे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, viewers, if you have missed it, इस तरह की वायलेंस इस देश में हो जाए और हम टॉलरेट करें, हम चुप रहें, ये इस तरह की वायलेंस हो जाए और हम घर में इंडियन आइडल देखें, इस तरह की हिंसा हो रही है और आप कौन बनेगा करोड़पति देखेंगे, इस तरह की हिंसा हो रही है, आप सीरियल देखेंगे, सच्चाई या वास्तविकता देखेंगे, हम सब लोग चुप रहेंगे, होने देंगे, कहेंगे हुआ तो हुआ. चाहे वो अनिला इज ओपनिंग द डिबेट राइट नाउ. अनिला यादव हो, अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, ओवैसी हो, आप इन लोगों के बयान देख लीजिए. ये इंस्टिगेट कर रहे हैं. चुनावी हार से ये लोग बौखलाए हुए हैं. बदला किससे ले रहे हैं? हिंदुओं से ले रहे हैं. अनुराग जी यहाँ पर बैठकर मुझसे पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन थे? अरे वॉल्यूम लाउडर फॉर प्लीज, वॉल्यूम कंट्रोल लाउडर फॉर अनिला. नो प्रॉब्लम, प्लीज. जो लोग, हमने तो डू दैट की बात ही नहीं की. डोंट डिस्टर्ब. अनिला कंटिन्यू. जो लोग ये बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं इसको? जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसा है, वोट डालने महिलाएं जाएंगी तो अपना बुर्का नहीं उठाएंगे, आज वो कह रहे हैं जनाने घर में आप घुसिए, एक एक मकान देखिए. अरे ये दिखाता है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होकर रखी हुई थी. आप आगे वोट, ये मैं यहाँ पे कोई जो सॉफ्ट अप्रोच नहीं रखूंगी. राजनीति पे आ गए. हाँ, यहाँ नहीं. वोट की राजनीति क्या होती है भाई? अपने लोगों से आप दंगे करवाते हैं, अपने लोगों से आप दंगे करवाते हैं. पंगा तो ले लिया, पंगा तो ले लिया साहब, अब उसका हर्ष भुगतने के लिए तैयार रहिएगा. योगी साहब की ये गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, सब कुछ कैमरे में बंद हो चुका है. कट्टे से लोकल वेपन से जो है वहां पर गोलियां चली हैं, और वो जो जिनके लिए आप आंसू बहा रहे हैं ना, 4 लड़कों के लिए गोलियां क्यों? हाँ, 4 लड़कों के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, वो उन्हीं के लोगों के जो बंदूक चलाई है उसकी गोली से वो मरे हुए हैं. आप लोग चाहते हैं, आप लोग आका बनकर बैठते हैं ना, आप लोग आका बनकर बैठते हैं. मुसलमानों डर जाओ, योगी आदित्यनाथ जी से डर जाओ, हिंदुओं से डर जाओ. दिस मैटर वॉज लीगल सेंट्रिक. आपने उसको पॉलिटिकल सेंट्रिक बनाया, आपने उसको रिलीजियस सेंट्रिक बनाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी निरंतर उत्तर प्रदेश में हार का सामना देख रही है. 2017 में, 2022 में, अब 2027 में भी हारेंगे. समाजवादी पार्टी कहती थी कि ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया बीजेपी ने, तो आप बौखला गए. आपने कौन सा इलाका चुना? संभल. डेमोग्राफिकली आपको सूट करता है, तो वहां पर आपने हमारे लोगों
लोगों को टारगेट करने का कोशिश किया। मलबा इतना सारा देखा आपने, ईंट पत्थर जाने क्या क्या, छोटे छोटे बच्चों को सामने खड़ा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों से पत्थर फिकवाए आपके लोगों ने, महिलाओं से पत्थर फिकवाए। दिस इज द रियलिटी ऑफ द समाजवादी पार्टी। दे वांट टू रिडिक्यूल, दे वांट टू अटैक हिंदूज, दे डू नॉट वांट आवर टेंपल्स टू गेट एस। कैसी भाषा का इस्तेमाल? क्या हो गया अनुराग भाई साहब, क्या हो गया जी, तुम्हारे क्या हो गया? सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब नहीं बिल्कुल आपके भेजे हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के भेजे हुए लोग थे, तभी तो मुंह पे नकाब डाला हुआ था, हिम्मत नहीं थी कि मुंह दिखा सके। समाजवादी स्पॉन्सर्ड लोग थे वहां पर। योगी आदित्यनाथ जी से घबरा गए, योगी आदित्यनाथ जी से डर गए, हार गए। कुंदर की जैसी सीट भी हार गए, मीरापुर हार गए तो घबरा गए। आपको तो लगा कि नहीं हम तो मुसलमानों की इतनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इतना तुष्टीकरण करते हैं, फिर भी हम हार गए। हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हो, कोर्ट को फैसला नहीं कराने देना चाह रहे हो कि कोर्ट फैसला करेगी यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। हिंदुओं ने एक बार भी कुछ कहा? हिंदुओं ने कुछ कहा? हाँ, आपके लोग जो है हजारों की संख्या में उतर आते हैं, ईंट पत्थर मलबा चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, अपने ही लोगों को मार डालते हैं, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? कौन? नहीं, बात तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना, और आप समझ रहे हैं कि बार बार काट की हांडी चढ़ेगी। साहब अयोध्या में चढ़ा ली, कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, सरयू नदी लाल कर डाली। अब नहीं 4 लोग जो मरे ना वो अपने लोगों की गोलियों से मरे। और मैं तो बताना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मुकदमा लड़ रही है दंगाइयों का, तो जो परिवार है जिनके लोग मरे हैं, आप देख लो ये किसको फायदा हो रहा है? समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा से आप समझ कर रहिए ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। आई हैव टू से वन सिंपल थिंग हियर, people and the political parties like समाजवादी पार्टी, they can take it as a warning कि उत्तर प्रदेश में दंगा पंगा नहीं चलेगा। नो पंगा नो दंगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना जानते हैं। और जिन लोगों ने अभी ये दंगे का पंगा किया है ना, आप देख लेना, सब कुछ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, प्रॉपर एक्शंस विल बी टेकन। और अभी तो गिरफ्तारियां हैं, वो बोलेंगे कि किन लोगों ने भेजा। यू सी योगी आदित्यनाथ की जो अप्रोच है, योगी आदित्यनाथ जी की जो अप्रोच है, उसके बारे में अनिला सिंह ने कहा, और एक राइमिंग सेंटेंस में कहा, रिदमिक सेंटेंस में कहा that Yogi ji's approach, Prafulla Ketkar, is no पंगा no दंगा। पंगा मत लीजिए, दंगा मत कराइए, सब कुछ ठीक रहेगा। पंगा लेंगे, दंगा करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। Why do you think संभल में वायलेंस क्यों हुई प्रफुल्ल केतकर? Is it because of Yogi's sweep on Saturday? क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है? Do you think they have a hand in this, in trying to polarize the situation? Yeah, I'm glad that Mr. Bhadoria is talking about we are Hindustanis, and he should make only 2 statements. One, that the current Muslims of India have nothing to do with Babar and his acts, and that's why they should completely disown people like Babar and Aurangzeb, who were bigots and who invaded Hindu temples, and that's why Muslims of India should not associate with them. 2, he should clearly say that the people who were involved in this rioting should be dealt with heavy hand and strict action should be taken against them, and he should promise that no Samajwadi Party lawyer will stand for those guys, because Samajwadi Party has the mindset of, one, firing, as Anita ji said, firing the car sevaks, by defending criminals by saying bacche hai galti ho jati hai, standing by big criminals who run rackets in Uttar Pradesh, and then they defend it. They have defended even terrorists. They have the moment. Bhadoria ji, I didn't utter a word when you were speaking. Please don't disturb. This is a very serious topic. For you, it may be a vote bank politics. For me, it is a national issue. Please. This is the same your MP of Sambhal who actually made a statement that if we are not allowed to set up our
shops in Kumbh, we will burn down everything. So you have a tendency. Your leader Ram Gopal Yadav also made an inflammatory statement. Please, don't do this. Don't do this. Don't play with the lives. You have seen who were pelting the stones. Can you name the community? Can you name the people? पत्थर कौन फेंक रहे थे? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। 1 मिनट। मुमताज आलम रिजवी जी, पत्थर कौन फेंक रहे थे? पत्थरबाज किस समुदाय से थे? जो पत्थरबाज थे वो किस which religion were the stone pelters from? Were they Hindus or Muslims? And whether strict action should be taken against them? No, रिजवी जी, पत्थरबाज संभल के पत्थरबाज किस समुदाय से थे? संभल के पत्थरबाज किस समुदाय से थे? अर्नब जी, first let me clear that I'm not supporter of MIM. I'm supporter of Constitution. But I'm supporter of minorities. If you are supporter of minorities, were the stone pelters from the minority community? सीधा सवाल करता हूँ, क्यों? मधुवंती जी, that's the question to ask. Were the stone pelters in Sambhal from the Muslim community or the Hindu community? Simple question. Absolutely, Arnab ji. I don't think anybody wants to answer a straightforward question. Do you support that the court ordered? You believe in Constitution, so do you support that the court ordered survey should be conducted peacefully? रिजवी जी, do you? Simple question. रिजवी जी, do you? आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक मिनट, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि विष्णु शंकर जैन जी के साथ कौन नारे लगा करके मस्जिद की तरफ गया, ये सर्वे का क्या? अरे भैया, यही तरीका है। जस्ट मिनट, लेट मी कंप्लीट। था या नहीं था? 1 मिनट। कोर्ट का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज hold on. You don't know Let anything. me complete you my the sentence. Constitution and you Just work for Sharia. 1 minute. Please give me 30 seconds. Please. Don't. Please. Court order survey होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes. होना चाहिए। हुआ भी। हुआ भी पहले दिन या नहीं होनी चाहिए? लेकिन सर्वे में क्या आप नारे लगाएंगे? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बताइए, क्या जो विष्णु शंकर जैन जी अपने साथ मॉब लेके जा रहे थे वहां पे, जस्ट मिनट, कोर्ट के ऑर्डर लेकर गए थे, स्टोन पेल्टर्स को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? No, seriously, stone pelters. नहीं, मेन इशू आप नहीं, पुलिस पे पत्थरबाजी होती है किस समुदाय से? नहीं, किस समुदाय? बोलिए, अगर नहीं, do you know, were they from the Muslim community? नहीं, were they from the Muslim community? कमाल हो गया। Are we going to allow this? पागल है क्या? कोई पागल है क्या? मुसलमान? What do you mean? कोई पागल है क्या? नहीं, किसी ने पत्थरबाजी तो की, किस समुदाय से? 25 करोड़ मुसलमान पागल हो गया। नहीं, मगर किस समुदाय से? संभल में पत्थरबाजी किसने की? नहीं, संभल में पत्थरबाजी किसने? वहां सुन रहे हैं। संभल में पत्थरबाजी किसने की? पुलिस किसने की? पुलिस ने। जी, पुलिस ने। जी, उसने की। अनिला सिंह, पुलिस ने की। पुलिस ने पत्थरबाजी झूठ बोल रही है। आई थिंक दिस इज नॉट पुलिस पत्थरबाजी करेगी क्या? पुलिस पत्थरबाजी। अनिला सिंह इज रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। अनिला सिंह इज रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। अनिला, कहीं पे कुछ भी होता है तो वहां पर मुसलमानों के घर से पत्थर बरसने लग जाते हैं। पुलिस को पत्थर चलाने की जरूरत नहीं। पुलिस के पास और सब बहुत सारे तरीके हैं मॉब को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, जो नारेबाजी कह रहे हैं ना, हमारे जयकारा बोला जाता है। ना मैं आपके धर्म का अपमान करती हूँ, ना आप मेरे धर्म का अपमान करें। अगर कोई भगवान श्री राम का जयकारा लगा तो आप मेरे नारेबाजी करें? वहां पर कोई राजनीतिक रैली हो रही थी? यू आर नॉट गोइंग। अरे डू नॉट ट्राई टू प्रीच अस अहिंसा परमो धर्म। डोंट ट्राई टू प्रीच अस। But let me not tell you कि यहाँ पर जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए और हमारे घर में आकर बस गए, उन्होंने बहुत जय श्री राम बोले तो क्या प्रॉब्लम? जय श्री राम कोई बोले तो प्रॉब्लम क्या? नहीं, कहाँ पे लिखा? कहाँ पे लिखा कि मस्जिद के बाहर कोई जय श्री राम नहीं कह सकता? नहीं, कहाँ पे नहीं कह सकता? कहाँ नहीं कह सकता? आप मुझे बताइए, मस्जिद के कितने दूर में जय श्री राम नहीं कहा जा सकता? नहीं, कहाँ की रूल? कौन सी कानून है? कौन सी कानून है कि संभल में जय श्री राम नहीं कहा जा सकता? कौन सी कानून है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जय श्री राम नहीं किया जा सकता? नहीं कहा जा सकता। कहा जाए, क्यों नहीं कहा जा सकता? जज ने कहा था, जज ने कहा कि जय श्री राम मत बोलिए। जज ने कहा कि जय श्री राम मत बोलिए। जज ने क्या कहा? जज ने क्या कहा? ऐसे सर्वे होता है दुनिया में? जबान को संभालिए।
नहीं, दुनिया में कैसे सर्वे होता है? कमीशन इज गोइंग टू डू सर्वे। क्या आप नारे लगा के जाएंगे? जय श्री राम। आप हमला करने जा रहे थे, आप हमला करने जा रहे थे, आप हमला करने गए थे, पत्थरबाजी नहीं हुई, और उसके बाद जब लोग जुड़ गए, ठीक है, आप पुलिस ने जो नारे लगा रहे थे, जो मौत की शक्ल में मस्जिद तरफ बढ़ रहे थे, उनको पुलिस ने नहीं रोका। उनको पुलिस ने नहीं रोका। Ladies and gentlemen, I want to come in right now. The first survey was conducted. What are we talking about? I want to give the backdrop. You see, in Sambhal in Uttar Pradesh, there is a local Shahi Masjid. अब क्या हुआ है कि 1529 में, according to certain versions, Babur is the Mughal ruler of India, and Babur demolishes the Harihar Mandir, और हरिहर मंदिर के जगह में ये मस्जिद बना दी, शाही मस्जिद। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है अर्नव, इस पर कनिंघम की रिपोर्ट है, एंड दैट हैज बिकम द बेसिस फॉर दिस सूट। द पॉइंट इज, if somebody really believes in the court and the constitution, why you are standing for the stone painters? The question is, had ruled only 4 years. समर्थन क्यों कर रहे हो? संविधान और उनकी गवर्नमेंट भी कोई एस्टैब्लिश नहीं थी कि मंदिर तोड़ना शुरू कर देंगे आते ही। 20 तारीख को भी हुआ था, और मस्जिद भी बना देंगे, भी सर्वे हुआ था, बनाया। तो इट्स टोटली रॉन्ग एंड फॉल्स। Anyway, my point is, Mr. Rizvi, if it is false, it is 1 minute, please, gentlemen, let me come in. If it is false, if the claim of the Hindu community is false, 1 minute, then the Advocates Commission will find out. The court, 1 minute, sir, you can't say. नहीं, समाजवादी पार्टी ने गलती क्या की है? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले अगर कोर्ट लेंगे तो पूरा देश जल जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। वन मिनट। देश को जलाने की धमकी पहले देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के फैसले को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप लोग कह रहे हैं कि आप संविधान बचाएंगे, आप संविधान को जलाएंगे, आप संविधान को तोड़ेंगे, आप संविधान को खत्म कर देंगे। आप जैसे लोग संविधान के लिए थ्रेट है। आई वांट टू आस्क शेख हमीर पत्थरबाजी किसने की? हु डिड द स्टोन पेल्टिंग? No, if there is a, no, you may. I want to know what is the places of worship. I want to say that no Muslim can stop, no Muslim or Hindu or anyone can stop a court-appointed commission from doing its job. That is my final point. No court-appointed commission can be stopped by any Muslim or Hindu. Am I right, Sheikh Hamir? Which is what has happened in Sambhal. Are you done with your question? Are you done? Now listen to me. Let me start. This BJP spokesperson, she was threatening. I want to tell her, ना तो इनके योगी जी से डरता हूँ, ना इनके मोदी जी से डरता हूँ. She was threatening on the live national television. एक सेकेंड. This is my answer to her. Please keep quiet. किसने किया था? थ्रेटन किसने किया था? कहाँ पे थ्रेटन की? इन्होंने कहा नो पंगा नो दंगा. इन्होंने थ्रेटन नहीं किया. इन्होंने कहा अंडर योगी 1 मिनट. इन्होंने कहा शेख इन्होंने कहा योगी जी मुख्यमंत्री है, अभी आप नो पंगा नो दंगा पॉलिसी फॉलो कीजिए. अगर पंगा लेंगे दंगा करेंगे तो फिर आपको उसका भुगतना पड़ेगा. गलत क्या कहा? पंगा and who is doing danga? Let me tell you. जो पत्थर फेंक रहे हैं वो पंगा कर रहे हैं. The petition was, you were talking about the court order. Yes. The petition was filed on Tuesday, November 19, and same day the commission was appointed. Who happens to be advocate, and survey was conducted on the same day. No, 1 minute. Survey and was first. Sheikh, can I come in for a minute and counter you? Sheikh, listen. Sheikh. The first survey was conducted on the 19th of November, following the decision of the court. Am I right? The first survey is conducted on the 19th of November to know whether the mosque was originally a temple from the 16th century. The second round was scheduled 1 day after the result on 24th November at 7 a.m. Okay? And lies were spread that land inside the mosque was being dug. No, you are lying. Let me tell you. I am not lying. Watch your words. Be careful. If I'm lying, have courage to listen first, then answer me. Listen, don't give me lectures on courage, please, Sheikh. You are from Congress party. बाकी नहीं, party तो evaporate हो चुकी है. See, on November 19, Tuesday, the petition was filed. Same day, commissioner was appointed to conduct the survey. Same day. And you are telling me
that 500 years before Babur came, destroyed the mandir and constructed mosque over it, and you will decide it within an hour and lower court. Acha, I want to ask you, Sheikh. Sheikh, I want to ask you. Sheikh, listen to me. Listen to me. You tell me, Sheikh. Okay. You say that you want to decide something of 500 years in 2 days. Okay. I want to ask you, and think about what you are saying. आपके बाबर को कितना टाइम लगा था मंदिर तोड़ने में? या आपके बाबर या हमारे बाबर? अभी जो भी, आप बाबर के फैन नहीं है, स्पोक्सपर्सन ने यही जबान, आप फैन है बाबर के, तो आप डिसोन कीजिए बाबर को, आप डिसोन कीजिए बाबर को, आप बाबर को डिसोन कीजिए, कहिए बाबर का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आप बाबर का नहीं, आप बाबर का समर्थन कर रहे हैं। नो, 1 मिनट, यू आर सपोर्टिंग बाबर, आप बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने कहा आपका बाबर तो आपको बुरा लग रहा है। बाबर मेरे नहीं है, आपके भी नहीं होंगे, तो बोलिए मेरे बाबर नहीं है। बाबर, औरंगजेब हमारे कोई नहीं लगते, बोल दीजिए। शेख हमीर, Sheikh Hamir, survey was conducted at Jama Masjid in Sambal. It was ordered by the court of the civil judge as per due procedure. In response to Vishnu Shankar Jain's petition, Hindus have not gone and demolished the mosque. They are going through the legal process. The survey takes place on 19 November. There is nothing legal. There is nothing legal. So now you don't believe in the courts also. You will only believe in Babar. आपको सिर्फ बाबर का नाम आप लेते हो, आप जब जंप करते हैं। सरकार, संविधान से कोई मतलब नहीं है आपको। ना आप सरकार को मानेंगे ना संविधान को। किसको मानेंगे आप? Mr. Arnab, RSS. Who will you follow, sir? Who will you follow? Mr. Sheikh Hamir, who will you follow? Again and again. Mr. Sheikh Hamir. You think demonizing Muslims, threatening Muslims. I am asking you, the temple is believed to be, do you understand the importance of a temple dedicated to Bhagwan Kalki? Masjid जो है, वहां पे श्री हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर भगवान कल्की की मंदिर है। उसको अगर तोड़ा गया है तो 1000 साल बाद भी वो भूल नहीं पाएगा कोई हिंदू। My one question to you. Do you believe in the Constitution? I believe in it more than you. That's why I really follow the legal process. You don't. You don't believe in the Constitution. You don't believe in the Constitution. Did Vishnu Shankar Jain not follow the constitutional process? Which part of the constitutional process did he not file? Did he not file a petition? Did he not go to the local court? Did he not get an order? Did he not follow? If the court order had not gone with him, would he have not followed him? Who are you to question me? You are nobody to question my allegiance to the Constitution. You are an anti-constitutional person speaking an anti-national language. Now, how come you decide if the courts have not decided? Bhai, I am not deciding. About the outcome of I am not. Madhuvanti explained to him. I am not deciding. You follow the court process. You follow the process. अरे, why are you a speed breaker for the court process, Sheikh? Tell me how can क्या आपकी 10 जनपद है क्या? 10 जनपद है जो आपका चलेगा? ये कोई देश 10 जनपद नहीं है। हो गए 10 जनपद के दिन। हो गए, बहुत हो गए 10 जनपद के दिन। आप वायनाड को लेके खुश हो जाइए अभी। Stop this. You are mixing politics. You be happy with वायनाड। You are mixing. आप वायनाड से खुश हो जाइए। आप दिल्ली के एक भी कंस्टिट्यूएंसी में जीत नहीं सकते, उत्तर प्रदेश के एक भी कंस्टिट्यूएंसी में जीत नहीं सकते। आप सिर्फ वायनाड तक सीमित है। वायनाड के बाहर एक जगह जीत के दिखाइए। श्रीनगर में जीतिए, गुवाहाटी में जीतिए। सिर्फ वायनाड सीमा रेखा बन गई आपकी। लक्ष्मण रेखा क्या है? नहीं, आई एम सॉरी, मिस्टर मत बोलिए, मुझे अपना नाम पता है। मिस्टर शेख हमीर, डिड विष्णु शंकर जैन नॉट फॉलो द लीगल प्रोसेस? That's why I remind you. अरे भाई, that's why I remind you. Yes, my name is अर्नब गोस्वामी। ठीक है, खुश, हैप्पी। मेरा नाम है अर्नब गोस्वामी। मेरा नाम है शेख हामिद। हाँ तो ठीक है। Also remember that. हाँ बोलिए, आई मैं क्या करूँ? रिमेंबर दैट क्या करूँ मैं? I am a Muslim. I am a proud Muslim. अरे क्या मैंने आपको बोला आप मुस्लिम है तो है, मैं क्या करूँ? I did not ask you whether you are Hindu or Muslim. मैंने पूछा हर चीज में हिंदू मुस्लिम। हर चीज में हिंदू मुस्लिम। मधुवंती, are you saying everything is through a Hindu Muslim lens? This is exactly what I'm हर चीज में हिंदू मुस्लिम। He doesn't want to listen. That's your agenda. If you follow the constitution of this country, then you have to just keep quiet, allow the law to take its course. Yes. Why are you so worried about the fact that a survey was conducted, and why bring in the Hindu-Muslim angle into this entire picture? I do not understand. A man has gone legally, he has applied, he has gotten the order, he has gone and tried to conduct a survey. Why pelt stones? Why does it have to become a law and order situation? I do not How understand. was the survey conducted? What do you mean? What we was know the how the survey? survey was conducted? Did he go with goons to conduct the survey? He did a legal job. Can you answer? Was What's the problem here? Was there a mandir before?
Did Babur destroyed any mandir there? Just answer. Why are you worried about what Babur did? आप बाबर का सब बाबर की एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? Jain did. Babur, Why are you Babur owing was your started by allegiance you, to Babur? एक मिनट शेख हमीर जी, मैं कंफ्यूज हो गया। आपकी उम्र क्या है भाई? आप 1527 में कहां पे थे? अब सबको ऑन कीजिए। ये तब से बोल रहे हैं कि नहीं किया बाबर ने, नहीं किया। आप थे कि आप चश्मदीद गवाह हैं। 1527 में बाबर जब वहां पे ये सब कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, आप क्या वहां पे कैमरा लेके रिकॉर्डिंग कर रहे थे? 2 घंटे में डिसाइड नहीं होता कौन कहां पे। अरे जो 500 साल में भी डिसाइड नहीं होगा। 500 एक मिनट, प्रफुल्ल अनम्यूट योरसेल्फ। अर्नब थे वहाँ पे, मुझे लग रहा है। अर्नब आप थे क्या उस समय 1529 में? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अनुराग भदौरिया, अर्नब आप थे क्या उस समय? एक मिनट, अनुराग भदौरिया, हो गया आपका सवाल? एक मिनट, आपको मालूम है क्या हुआ है? नहीं, आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं कह रहा 1529 में अर्नब आप थे क्या? आप थे वहाँ पे? आपको पता है कि बाबर ने नहीं किया? अरे मैं भी नहीं था, आप ही नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? जब कोई था ही नहीं, किसी को मालूम नहीं, फिर क्यों लड़ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना आप थे, ना हम थे, ना कोई था, फिर क्यों लड़ रहे हैं हम लोग टीवी डिबेट में? एक मिनट, तो जिनको डिसाइड करना है। आप भी नहीं थे ना वहाँ पे, मैं भी नहीं थी, अर्नब जी भी नहीं थे, तो उस कोर्ट को अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, अलाउ क्यों कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को बुक को लेकर घुमाते हैं ना पार्लियामेंट में, डॉक्टर मोहन भागवत, तो अलाउ कीजिए, सर्वे करने में अलाउ कीजिए। आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत से इतना सपोर्ट। अच्छा एक मिनट, हमारे साथ इस वक्त देखिए, जो भी संभल में हुआ ठीक नहीं हुआ। आप कह रहे हैं आप थे क्या? आप भी नहीं थे, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी। 1527 में आप क्या कैमरा लेके घूम रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे? क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि बाबर ने नहीं किया? बाबर को सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? मत दीजिए, फिर मैं कहूंगा, आप कहेंगे आप बाबर के साथ हमको लिंक क्यों कर रहे हैं? कौन सर्टिफिकेट? नहीं, इट्स नॉट द राइट वे। हम थे ना वो था ना, आप नहीं थे तो आप क्यों बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी क्यों फिर बाबर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, संभल वायलेंस पर 1 मिनट वी हैव, अरे काम डाउन, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा बागेश्वर जी is with me this evening.